Students, you are welcomed in your biology class and we are studying chapter Principles of Inheritance and Variation. In this chapter till now we have studied or talked about one gene and inheritance, and for that what Mendel did, he considered one character. For example, in our class we talked about the character that is height. Now the height of the plant can be tall or it can be dwarf. Mendel crossed these two plants, and in F1 generation what he found that all the plants were tall. But in F2 generation, the ratio or the result was in the ratio 3 is to 1, means 3 tall plants and 1 dwarf plants. So based on his observations, Mendel gave laws of inheritance or principles of inheritance. And these two laws, in which first one is known as law of dominance and the second one is called as law of segregation. So first of all, we will study about law of dominance. Dominance means the character which is able to express itself. Now, what Mendel observed that there is something which is transferred from one generation to another generation during sexual reproduction. What Mendel used, Mendel said that these characters are controlled by a discrete unit called factors. Means there is something and that he called as factors. उसने कहा कि ऐसा कुछ ना कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स. यस, we wrote tall plant as capital T और कैपिटल T स्मॉल t, यानी जो फैक्टर्स हैं वो किस में लिखे गए, पेयर्स में. और अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T and small t, this is dissimilar pair of factors. And what is there in this dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, यानी यहाँ पर ये टू हैं, इनमें से वन जो है वो डोमिनेट कर रहा है. सो कैपिटल टी जो कि एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, सो ये डोमिनेट करेगा. एंड द स्मॉल टी ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी दिस इज इन द केस ऑफ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स. लेकिन अगर पेयर ऑफ फैक्टर्स सिमिलर हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कैपिटल टी, सो यहाँ पर सेम जो है फैक्टर्स प्रेजेंट है, सो द प्लांट विल बी टॉल. सो इफ द डोमिनेंट फैक्टर इज प्रेजेंट, then also the plant is tall because of this capital gene. And in this similar pair of factors capital T is there, so the height of the plant is tall. यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसमें 3 जनरल रूल्स हैं. पहला कि कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड और कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. Factors always occur in pairs, and if the dissimilar pair of factors is there, then one pair will dominate the other. Now this is known as law of dominance, and this law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character that we studied in monohybrid cross. monohybrid cross में हमने एक कैरेक्टर को कंसीडर किया, एंड उसके बाद जो है एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 क्या हुआ था, टॉल और ड्वार्फ में से F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, यानी एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ. लेकिन F2 जनरेशन में प्लांट जो है वो टॉल भी हैं और ड्वार्फ भी, यानी बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड. यानी यहाँ जो रेशियो है दैट इज़ इन द और जो द रिजल्ट है दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ 3:1 in F2 generation. Now law of segregation, because 2 laws of inheritance were given by Mendel. First law of dominance, and the second law is law of segregation. Segregate means to separate. So means this law, it is based on the fact that alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही, तो पेरेंट्स क्या थे, टॉल और ड्वार्फ. और F1 जनरेशन में सारे क्या रहे, टॉल. F2 में क्या रहा, 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ. यहाँ हमें कोई ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग नहीं मिली. आइदर द प्लांट्स आर टॉल और द प्लांट्स आर ड्वार्फ. मीन्स दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिल्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, पेरेंट्स के पास दोनों ही एलिल्स थे गैमेट फॉर्मेशन में, लेकिन ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए,
और गैमेट जो है उसे उनमें से कोई एक फैक्टर मिला। अब सपोज होमोजाइगस पेरेंट थे तो सारे के सारे जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर होंगे, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस पेरेंट है तो फिर क्या होगा, that two kind of gametes will be formed, each having one allele with equal proportion. Now let us understand this concept. Suppose it is capital T, it is parents. Now these parents when they form gametes के पास भी क्या होगा, सेम जो पेयर ऑफ एलिल था उसमें क्या हुआ, सेम है, तो गैमेट्स क्या रहे, सिमिलर रहे। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें एक हेटेरोजाइगस पेरेंट का, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज़ अ हेटेरोजाइगस पेरेंट एंड व्हेन दिस पेरेंट फॉर्म्स गैमेट, तो यहाँ पर जो है वन गैमेट इट हैज़ कैपिटल टी एंड द अदर गैमेट इट हैज़ स्मॉल टी, यानी कि हेटेरोजाइगस में जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे, जिसमें एक एलेल जो है वो एक के पास चला गया एंड द सेकेंड वन हैज़ गॉन टू द सेकेंड गैमेट। जबकि इन होमोजाइगस पेरेंट व्हाट वी आर सीइंग कि ऑल गैमेट्स आर सिमिलर, कैपिटल टी इट विल फॉर्म टी टाइप ऑफ गैमेट्स, और कोई मिक्सिंग नहीं होती, सेग्रीगेट हो जाते हैं सिंपली गैमेट फॉर्मेशन में। कैपिटल टी स्मॉल टी वर देयर, लेकिन क्या हो गए, सिंपली सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। कब सेपरेट हो रहे हैं एलिल्स, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। नाउ when experiments on peas, when Mendel did many of the experiments, repeated experiments on pea by considering different traits, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि he considered 7 contrasting characteristics और traits, और क्या मिला कि जो F1 है that had a phenotype that did not resemble either of the two parents. So this is our next topic, that is incomplete dominance. Mendel ने क्या देखा, फर्स्ट उसने रिजल्ट दिया कि जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही है, मतलब पेरेंट्स टॉल है। लेकिन जब मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कॉन्टिन्यूएशन में रखा तो मैंडल ने क्या देखा कि कई प्लांट्स में, इन सम ऑफ द प्लांट्स F1 जो है क्या था, वो अपने किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था एंड इट वॉज इन बिटवीन द टू, बल्कि दोनों के बीच से बन गया वो। And for example is inheritance of flower color in snapdragon और एंट्रीहिनम, जो स्नैपड्रैगन नेम जो फ्लावर है, इसमें अगर पेरेंट प्लांट जो है इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर एंड द अदर प्लांट इज प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर एंड व्हेन द क्रॉसिंग इज डन then a new character is observed, means the flower with the pink color is produced, as it is shown here in this also. This red, this is the flower of snapdragon plant which has red flower, the other plant of snapdragon has white flower. When the crossing is done, as you are able to see here, यहाँ क्या हो रहा है, आर आर एंड स्मॉल आर, यानी कि जो डोमिनेंट कलर रेड है, दिस आर कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंसी एंड दिस स्मॉल आर इट इज़ इन रिसेसिव फेज। गैमेट फॉर्मेशन हुई, एलिल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग गैमेट्स ऑफ आर टाइप एंड इट इज़ फॉर्मिंग गैमेट्स ऑफ स्मॉल आर टाइप। व्हेन द फ्यूजन ऑफ दिस टेक्स प्लेस, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, व्हेन दिस आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जब ये क्या हो रहे हैं, इनका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो व्हाट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल जो फ्लावर्स हैं दे आर ऑफ पिंक कलर, यानी क्या हुआ, और जब इन पिंक कलर के फ्लावर्स की सेल्फिंग की गई, यानी इनको फिर फर्दर क्रॉसिंग किया गया, दिस इज़ द फ्लावर ऑफ पिंक कलर विच हैज़ जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, टू पेरेंट्स कंसीडर किए गए, गैमेट्स फॉर्म हुए कैपिटल आर स्मॉल आर, here also capital R small r, and when the fertilization and the fusion of gametes takes place, so what may happen, this R and this R it will form red color of the flower, this small r and small r it is forming white color of the flower, but when one capital and one small they mixes or fuses, what is formed,
pink color is observed. Now, what is the reason behind this and what exactly is dominance? कुछ जो हैं why are some alleles dominant and while some are recessive? इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट जीन्स, मीन्स व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस डोमिनेंस. What is gene? Gene contains the hereditary information for a particular trait, means that may be for height, that may be for the color of the flower, that may be for the shape of the pod. Different traits के लिए जो है different genes responsible हैं because they contain that information for that trait. किसी भी जीन के पास उस particular trait के लिए क्या present होती है, information होती है. अब if we talk about the diploid organisms, diploid means if they have double number of chromosomes, there are 2 copies of each gene, yes, as a pair of alleles, यानी 2 copies present होंगी, and these 2 alleles they may not always be identical. For example, in heterozygous condition, heterozygous में हमने क्या देखा, जो alleles हैं they are different from each other. So जो one of them may be different due to some changes. जो वन है दूसरे से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे और जिसने उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जीन जो है व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस सम पर्टिकुलर एंजाइम्स. नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, यस, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, और ये क्या बनाते हैं, एलेल्स बनाते हैं. अब अगर हम एक नॉर्मल एलेल की बात करते हैं, एक नॉर्मल एलेल एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो जो एंजाइम है फिर सबस्ट्रेट के साथ, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद क्लास +1. हमने 11th क्लास में पढ़ा कि एक एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर ज्वाइन हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है और चेंजेस हो जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं. सो हेयर ऑल्सो जो जीन है, जीन क्या कर रहे हैं, यानी जो एलेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग सबस्ट्रेट. अब अगर एलेल जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, एलेल का मतलब आप सबको क्लियर होना चाहिए, दिस कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और दिस स्मॉल टी, दीज आर द एलेल्स. ये एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं लिखने के, मीन्स ये दिस इज़ एन एलेल, दिस इज़ एन एलेल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलेल्स हैं. नाउ सपोज देयर इज़ सम मॉडिफिकेशन इन द एलेल. अब अगर मॉडिफिकेशन हो गई एलेल में, तो क्योंकि एलेल क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. अब जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा दैट मे बी नॉर्मल और दैट मे बी नॉन फंक्शनल, और देयर मे बी कि जो एलेल है वो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे. यानी इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन जीन और द एलेलिक फॉर्म, तो क्या होगा, जो उन्होंने एंजाइम प्रोड्यूस करना था, there may be 3 possibilities that the enzyme may be less efficient, the enzyme may be non-functional, and there may be no enzyme at all. Now if we talk about the first case, what has happened, allele जो है वो क्या हो गया है, modified. This modified allele is equivalent to unmodified allele and it will produce the same phenotype or trait. यानी कि अगर वो उसमें चेंजेस आ गए हैं लेकिन वो नॉर्मल ही जो है वो एंजाइम रह रहा है, नॉर्मल ही वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है. सो सच इक्विवेलेंट एलिल पेयर्स आर वेरी कॉमन, ये इट्स वेरी कॉमन. बट इफ़ अगर कोई एलिल जो है उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दिया या कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, तो जो फिनोटाइप है उसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. फिनोटाइप मतलब उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस. अगर नॉर्मल एलील है तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, नॉर्मल बॉडी प्रोड्यूस हो रही है. बट इफ़ देर इज़ चेंज इन द एलील, तो क्या होगा, जो एंजाइम में बी नॉन फंक्शनल और दैट में बी देर में बी नो एंजाइम, और इन दोनों ही कंडीशन में जो फिनोटाइप है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा. जो फिनोटाइप है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड. अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ. एंड जो अनमॉडिफाइड है, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दैट विल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप एंड दैट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एलील. और जो मॉडिफाई हो गया है,
अब वो क्या रहेगा, क्योंकि या तो वो नॉन फंक्शनल है उसकी प्रेजेंस में, और या फिर वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एंड दैट्स वाई दैट एलिल बिकम्स द रिसेसिव एलिल. आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. यहाँ पर अगर फिर से हम वही एग्जाम्पल ले लें, सपोज कैपिटल आर and small r. Here we have studied this capital R is dominant, this small r is recessive. किस तरह बनेगी ये, एक्चुअल में क्या है, एलिल्स. अब इन एलिल्स में हो सकता है इसमें कोई चेंजेस आ गए, और उस चेंज के कारण स्मॉल आर यानी दिस एलिल इज फॉर्म्ड. नाउ बिकॉज दिस इज नॉर्मल वन, इट विल प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, और नॉर्मल एंजाइम होने के कारण देयर विल बी नॉर्मल फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड. लेकिन यहाँ पर जो है चेंजेस हो गए हैं, इसलिए क्या होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ओनली द नॉर्मल एलिल और द डोमिनेंट एलिल विल बी एबल टू एक्सप्रेस itself. This is all about today's class. Now what you have to do, you have to learn in complete dominance properly with the example of plant Snapdragon. Thanks and have a nice day.